So good evening. Today is 11th October 2023 and we are continuing our discussion on ancient Indian history. Okay. So I am just taking a review of recap of ancient Indian history just for better understanding. Okay. For those who miss earlier few sessions and to maintain a continuity in this section of ancient Indian history. Okay. So थोडासा रिव्ह्यू घेतो मी ancient Indian historyचा. Earlier of ancient Indian history we discuss IVC, Indus Valley Civilization, Vedic period, Buddhism and Jainism, and then Mauryas. Okay. And we were discussing Mauryas, and within Mauryas we were discussing the inscriptions of Ashoka and prior to that we discussed Mauryan administration, the military administration during the period of the Mauryas. Okay. And we were discussing inscriptions of Mauryas. Okay, Mauryan inscriptions, which are very important with respect to your examination. Okay. Now, just a few questions for those who attended these earlier sessions related to Indus Valley Civilization, related to Vedic or up to this section. Just have a question answer sessions. And as I have told you to read NCERTs very properly or even the state board books also. Okay. So through that you can get some idea about all those topics of the ancient Indian history. Okay. So now related to Indus Valley Civilization, we discussed so many things. Okay. And while discussing this IVC, Indus Valley Civilization, we have seen that there were important cities located in this IVC. And on the basis of all those cities, in examination, you can get question. Okay, at the state services examination and at the civil services examination. And even in all the central government examinations. Okay, so IVC is that important topic. Okay, through which you can get questions of different examinations. In IVC section, those cities like Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Kalibangan, Sutka-Jinder, Surkodata, Banawali. Okay, all those cities are important. All those important features about which we discuss, like great bath, okay, then great granaries, then the division of the cities into two parts, that is citadel and lower town. And at
one place only, the division of the city into three different parts. Okay, तो मतलब कुछ जगहों पे आईवीसी की जो सिटीज है उसका डिवीजन एक मतलब दो कंपार्टमेंट्स में है, तो एक ही ऐसी सिटी है जिसका डिवीजन तीन कंपार्टमेंट्स में है। मतलब यूजुअली इट इज डिवाइडेड इनटू two parts, but at only one place it is divided into three parts. Okay, so that division we can see. So likewise, so many features. ग्रेड बात के बारे में हमने बात की थी जब हमने स्टार्ट किया था। ग्रेड ग्रेनरीज के बारे में हमने बात की थी। ओके, एंड then we also discuss about so many other features. Social features we discuss, political features we discuss, cultural features we discuss, about religion we discuss, है ना। और हमने इकोनॉमी के बारे में भी बात की थी। ओके, सो ऑल दीज important dimensions of the Indus Valley civilization are very important with respect to examination, है ना। जैसे अभी जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है। जब हम भारत के सोसाइटी की बात करते हैं तो एक्चुअल सोसाइटी की शुरुआत आईबीसी से होती है। पॉलिटिक की, कल्चर की, रिलीजन की, सारी जो चीजें हैं वो आईबीसी से शुरुआत होती है। बिकॉज this is that civilization of India which is considered as the indigenous or the aboriginal first civilization of the Indian subcontinent. ये भारतीय द्वीपकल्प का, okay, means not just today's geographical or the political India. This is a civilization of today's Pakistan, some portion of Afghanistan, and today's all over India, political and geographical India. Okay, so IVC is important to understand the indigenous civilization and indigenous, what you can say, urban civilization of India, indigenous urban civilization of India. Okay, तो भारत की यह पहली नागरी सभ्यता है। तो अगर हमें भारत का इतिहास, मतलब इस देश का इतिहास अगर हमें जानना है तो आईबीसी, you need to understand very important dimensions associated with Indus Valley civilization. Okay, तो हमने काफी सारी बातें इसके बारे में की थी और इसके बारे में हमने ये क्या था, चर्चा की थी, एनालिसिस, इसके कंपैरिजन, कंपैरेटिव एनालिसिस, right, and everything we discuss about the IBC, right, and इसके ऊपर आपके प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस होते हैं at prelims level of examination, at the state services and civil services examination, and at so many other central government examinations you can get questions related to IBC. Okay, फिर हमने डिस्कशन किया था वैदिक पीरियड का। सो इन विथ रिस्पेक्ट टू वैदिक पीरियड वी डिस्कस early Vedic period and later Vedic period. Okay, so early Vedic and later Vedic period, what is the difference? Okay, what happened in the early Vedic period, what happened in the later Vedic period, what is a transformation, and you can link this Indus Valley civilization with the Vedic period civilization, with the Vedic period also. Indus Valley civilization, we have considered that Indus Valley civilization is an indigenous civilization, but when we talk about the Vedic period, so Vedic period, about Vedic period, it is said that ki Vedic culture or Vedic period is not actually associated with the indigenous people. मतलब वैदिक संस्कृति जो है वो भारत की मूल संस्कृति नहीं है। तो ये आर्यों की संस्कृति है। ओके, ये आर्यों की संस्कृति है और आर्यों से मतलब ये होता है, काफी सारे हिस्टोरियंस ने ऐसा कहा है कि आर्यंस वेर नॉट इंडिजिनियस पीपल। इंडिजिनियस का मीनिंग होता है कि इंडिजिनियस मीन्स एबोरिजिनल। ओके, फॉर एवरी कंट्री देयर इज अ पॉपुलेशन विच इज इंडिजिनियस। नाउ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द पैलेस्टाइन एंड इजराइल क्राइसिस। ओके, आप लोग
पैलेस्टाइन और इजराइल क्राइसिस को अभी देख रहे होंगे, है ना? तो उसमें मुझे एक बात बताइए, इफ एनीबडी इज हैविंग नॉलेज, पैलेस्टाइन के लोग और इजराइल के लोग में इंडिजिनियस लोग कौन से हैं? हैव यू रेड एनीथिंग रिलेटेड टू this conflict between the Palestinians and the Israeli people? Hmm? Anybody is having knowledge about this recent conflict? Because this conflict is also important. सर पॅलेस्टाईन आर ॲबओरिजिनल. कोणी सांगितलं? सागर सागर सागर. ओके. या हाँ, आदित्य बोल. So, like from recent history point of view, the Palestinians were there before, but when we look into like more ancient history, that land was like Judea, so it was the land of the Jewish people. But then Okay. if we go like even before that, then there used to be another ancient civilization, the Canaanites. So according to the Hebrew Bible, their God has promised them that land if they obey his commandments. And when after World War II, when they got the land, it was seen as if the God-given prophecy has like come true. Okay, so as per the religious texts, it is associated with the Israelis people, right? Or the Jews? Yes, sir. Like, but in recent history, it's the Palestinians who were before them, like in Yes, last yes. 100 years. Ha. So that is a recent development, and it is said that Israelis, they encroach upon the lands of the Palestinians. Okay, and Palestine is not as such recognized as a country on the world map. बरोबर आहे का? So Israel is a country. there is another like this perspective. Like, so according to Muslims, it is like the same God which has also given them apparently the like city of Jerusalem. So it's that angle also. So it's a very complicated issue. So that Palestine-Israel is a very complicated issue. Okay, but just if we consider the Aboriginal perspective, then it is said that Israelis, they encroach upon the Palestinians, and now they become the rulers of that entire land. Okay, so there are so many controversies and conflicts related to this. Now, with respect to India, like when we come to know about the ancient Indian history of India, and when it comes to the indigenous people, so it is said that the people belong to the Indus Valley civilization. They were the indigenous people. They belong to this particular geographical region. And then there is a theory of Aryan invasion, and then it is said that Aryans are alien people. They were foreigners. They invaded. They arrived to Indian territories from different parts of the world. So many opinions related to the Aryan invasion or the origin of the Aryans. Okay, but mostly it is understood that they were the people those who came from central part of Asia. Okay, so these people, they invaded the Indian territories like today's Pakistan, some part of Afghanistan, and a portion of today's Rajasthan, Gujarat. Okay, and then they impose their alien culture on the Indian people, and then we already discussed about this, that these people, okay, these people, they they were responsible for the division of the Indian society later on, specifically first that introduced in the northern India. So we already discussed that early Vedic period, later Vedic period. With respect to Indus Valley civilization, we discussed earlier that 2500 BCE or CE to 1700 BCE or CE, and then 1500 BCE to 1000 BCE to 600 BCE. So this is early Vedic, this is later Vedic. Okay, यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा ठीक था, और यहाँ पे जो है काफी सारी बातें ट्रांसफॉर्म होने लगी. तो ये पीरियड और ये पीरियड, अर्ली वैदिक, लैटर वैदिक. ओके, वी डिस्कस social transformation from early to later, economic transformation early to later, political transformation early to later, religious transformation early to later,
and then so many other things. Okay, so we discuss. With respect to your examination, you may get a question which is related to comparative analysis, which is related to comparison of society during IVC and Vedic period, economy during IVC and Vedic period, polity during IVC and Vedic period, polity during Vedic period and the Mauryas, polity during Mauryas and the Guptas. Okay, so likewise, with respect to history subject, it is very important because in history, they may ask you questions which are related to comparative analysis. So when it comes to comparative analysis, so one should have a very, what you can say, very proper understanding of the different evolutionary phases in the history, है ना? So वो आप लोगों को इसका और इसका कंपैरिजन पूछेंगे, वो आप लोगों को इसका और इसका कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं, है ना? तो हमने जैसे काफी सारी बातें इसके पहले की थी कि जैसे मैंने बताया था कि इंदस वैली सिविलाइजेशन, अभी देखो भारत में, महाराष्ट्र में बहुत बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी भारत का हमारा जो पॉलिटिक्स है, वो जो सेंटर्ड होता है, वो पॉलिटिशियंस हमारे क्लेम करते हैं कि बाबा हमें विकास चाहिए, लेकिन जब घिनौने पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो वो विकास की बात नहीं करते हैं। They talk about the communal hatred, they talk about the caste hatred, and ultimately they create such a situation which is responsible for some sort of religious fundamentalism, right? और मैंने काफी बार, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, बहुत ही अथॉरिटी के साथ कहता हूँ, इतने सारे अनुभव के बाद, ओके, और काफी इस कल्चर, रिलीजन और सारे पर्सपेक्टिव के डायमेंशंस की पढ़ाई करने के बाद मैं ये हमेशा कहता हूं कि हमारा, इस देश के लोगों का आईवीसी में कोई रिलीजन नहीं था। रिलीजन इज अ कंसेप्ट विच डेवलप्ड इवेंचुअली ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, ओके, and then got or received a certain specific shape, specific terminologies afterwards. Okay, तो religion एक concept है, यह एक संकल्पना है, धर्म यह एक संकल्पना है, और फिर धर्म के संकल्पना जो थी वो इस तरह से स्ट्रेंथन हो गई कि उसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस, एंड वी कैन से दैट कि यू वुड गेट so many like dimensions to the concept of religion. Okay, उसमें एथेइस्ट एंड थेइस्ट और अथेइस्ट, ऐसे दो फिर और सब कंसेप्ट्स डेवलप हो गए। थेइस्ट मतलब ऐसे लोग कि जो गॉड की कंसेप्ट को मान्यता रखते हैं, एंड अथेइस्ट मीन्स वो लोग जो गॉड के अस्तित्व को नकारते हैं, है ना? तो ये भी जो डेवलपमेंट है, सो द ट्रेसेस related to this development you can see in ancient Indian history. Okay, so related to all these dimensions, earlier we discussed a lot, हमने काफी सारी इसके बारे में चर्चा की है, तो अभी इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें with respect to competitive examination and in general if you want to have a broad perspective, okay, क्योंकि we are learned students, आप सारे पढ़ने वाले बच्चे हो, और पढ़ने वाले इस देश के जो लोग हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि they should not believe on the false propaganda of the illiterate politicians of this country. Okay, या जो फिर कोई भी नॉलेज ना रखने वाले जो सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जिन्हें ना हिस्ट्री का नॉलेज होता है, ना पॉलिटी का, ना कुछ, तो उनके बहकावे में हम लोग ना आए, इसलिए हिस्ट्री को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई समटाइम I become a critic of all those people
those who want to divide this country on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of sects, and on the basis of so many other other illogical categories, right? Okay, तो जो व्यक्ति ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझेगा उसको जल्द से जल्द संबोधि प्राप्त होती है। ओके, तो मटेरियलिस्ट लाइफ में संबोधि प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। संबोधि प्राप्त करना मतलब क्या है कि थोड़ा सा एनलाइटन होना, जागरूक होना। संबोधि तो वैसी बहुत बड़ी बात है, टू गेट एनलाइटमेंट, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट अगर हम थोड़े से जागरूक भी हो जाते हैं तो हमारे पढ़ाई का जो मकसद है वो शायद सॉल्व हो सकता है। ओके, तो हैव a different kind of perspective with respect to your IVC and the Vedic period, and we discussed earlier the development of the tribes. Okay, the conversion of the tribal leaders into the king. We already discussed the concept of the king. Okay, हमने ट्राइबल लीडर का कन्वर्जन कैसे राजा में हुआ, राजा का कन्वर्जन कैसे चक्रवर्ती में हुआ, चक्रवर्ती सम्राट में हुआ, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। वो बलि क्या था? ओके, बलि सिस्टम क्या थी? बलि मीन्स वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। तो बलि मीन्स वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। बलि के दो अर्थ होते हैं, बलि मीन्स सैक्रिफाइस ऑल्सो, ओके, इन जनरल टर्मिनोलॉजी, एंड बलि मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम इन एंशिएंट पीरियड, बलि मीन्स voluntary contribution to the leader. So during Vedic period, here in the early Vedic, Bali was a voluntary contribution, and then Bali became a compulsory contribution. So when it became compulsory contribution, so during that period we can see that there is a transformation of a tribal leader into the Raja, है ना? क्योंकि जो ट्राइबल लीडर था शुरुआत में वो एक ग्रुप का लीडर था, वो उनकी लड़ाइयां गाय के लिए होती थी। लेकिन जब ये राजा, मतलब ये जो ट्राइबल लीडर था, जब सेकंड पार्ट में इसको जब रेवेन्यू मिलने लगा लोगों से, कंपलसरी जब उसने रेवेन्यू वसूल करना शुरू किया, तो वो ट्राइबल लीडर का ट्रांसफॉर्मेशन राजा में हुआ। सो दैट ट्राइबल लीडर कन्वर्टेड इनटू द किंग। और फिर in the latter Vedic period, we already discussed that there is a development of different sacrifices, है ना? ये sacrifice हम जब when we heard this term sacrifice, so sacrifice का अर्थ होता है त्याग, लेकिन ये जो sacrifice था ये था बलि। ओके, बड़ी, मराठी में बड़ी, बड़ी मतलब क्या? किसी की हत्या करना, है ना? जैसे भगवान को बलि चलाते हैं लोग, है ना? हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी परंपराएं है। सो आई नेवर अंडरस्टूड दिस थिंग। हाँ, आई नेवर अंडरस्टूड दिस थिंग कि बाबा ऐसे कौन से कारण थे कि जिस कारण की वजह से किसी को चढ़ावा चढ़ाने के लिए किसी इनोसेंट एनिमल की हत्या की जाती है। अंडर व्हाट बैकग्राउंड दीज सर्कमस्टेंसेस डेवलप्ड, आई डोंट नो। ओके, एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली अगेंस्ट all these so-called religious practices in the name of customs, religion, and this and that. Okay, हाँ, तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ऐसी हत्याएं होती थी, and under that background only, and those sacrifices were in the name of religion. So under that background only, there is the emergence of two faiths in ancient Indian history by 6th century BC. So we talk about Buddhism and the Jainism. So हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में भी बात की थी, है ना? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि why there was a emergence of Buddhism, why there was a emergence of Jainism, and why Buddha and the Mahavira both emphasized on
a very important philosophy, that is Satya and Ahimsa. So if you see the Buddha's philosophy and the Mahavira's philosophy, so both the philosophy is concentrated upon the two very important aspects. Okay, Satya and Ahimsa, that is truth and the non-violence, है ना? तो ये क्यों हुआ, इसके बारे में भी हमने का एनालिसिस जो है किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि why this thing happen, ये क्यों हुआ, why? तो ये ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप हुई, ओके, एंड जो ये राजा वाली कंसेप्ट थी, मतलब इन द बिगिनिंग, इन द अर्ली वैदिक पीरियड, देयर वेर सैक्रिफाइसेस, बट these sacrifices were not as such mainly associated with killing of the animals. Okay, लेकिन लैटर वैदिक पीरियड में जैसे काफी सारे बातों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो इन द लैटर वैदिक पीरियड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द सैक्रिफाइसेस इंक्रीज, है ना, और सैक्रिफाइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि उसमें अश्वमेध यज्ञ जैसे सैक्रिफाइसेस बढ़ गए। अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, है ना, मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा था कहीं, अब वो कितनी बात सत्य है असत्य है मुझे नहीं पता, बट आई हैव हर्ड और आई हैव रेड समवेयर कि हमारे यहाँ पे जो नारियल फोड़ा जाता है, पता है क्या आप लोगों को? नारियल फोड़ते हैं ना आप लोग, सब लोग? हाँ, ये फोड़ते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, नो sir. सर। या रहा था, सुना, कहीं सुनते हैं, लेकिन कि शायद that is somehow related to the ancient practices. वो नारियल को अगर आप देखते हो, मतलब वो that is related to sacrifice. आप किसी भी रिलीजियस, कोई भी आप जब कोई धार्मिक काम करते हो तो नारियल क्यों फोड़ते हो? कभी किसी ने ये प्रश्न पूछा है खुद से, क्यों भाई? हमने दूसरा कोई फल फोड़ना चाहिए, हमने तरबूज फोड़ना चाहिए, हाँ, हमने और कुछ फोड़ना चाहिए, लेकिन नारियल फोड़ते हैं। वो तो नेचर की देन है कि एक नारियल है, लेकिन वो फल क्यों आया, कहां से आया एकदम से? अच्छा, ये जो फल है ये अमेरिका में फोड़ते हैं क्या लोग, अगर वहां पे अवेलेबल है तो? या फिर जहां जहां पे अवेलेबल है वहां पे फोड़ते हैं क्या ये लोग, किसी रिलीजियस कल इसमें? नारियल का जो शेप है वो कैसे होता है? Human skull. हाँ, असस्ते कि नहीं थे? So I don't know whether it is true or false, okay. But as per my knowledge, okay, what I have heard, कि in the ancient period and specifically during the Vedic period, when there is a development of this Varna order system, okay, in the 1000 BCE, along with the, because हमने वो पुरुषमेध यज्ञ के बारे में भी पढ़ा था, राइट? पुरुषमेध यज्ञ, राइट? और अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी पढ़ा था हमने, है ना? तो ये अश्व को घुमाते घुमाते थे पूरे साल भर, और फिर अश्व को सैक्रिफाइस किया जाता था, अश्व को खत्म किया जाता था। बेचारा साल भर घूमता था, जो राजा परफॉर्म करता था उस राजा को चक्रवर्ती सम्राट बना देता था ये अश्व। लेकिन फाइनली उसके साथ क्या होता था? जैसे उस दिन हेमंत त्रिपुरे सर ने सेशन लिया था रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मस्ट हैव अटेंडेड। उन्होंने एक बात कही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, कि इन इंडिया there is a development of the sati system, and when this sati system developed, so nobody asked to women folk of India that भाई आपको अभी आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आपको भी अभी उनकी चिता के ऊपर छलांग लगाना है, और ये आपका धार्मिक कर्तव्य रहेगा। धर्म बताता है कि महिलाओं ने सती जाना चाहिए। तो when this customary laws pass, so that time nobody asked, no
patriarchal, like that patriarchal supremacy, or those so-called the contractors of the religion during those days, they never asked to the women. ऐसे ही इस घोड़े को पूछा नहीं गया कि आपको 365 दिन हम घुमाएंगे घुमाएंगे और फिर उसके बाद सैक्रिफाइस करेंगे, है ना। चलो वो तो महिला जो थी उसके तो उसे तो पूछ सकते थे, लेकिन उससे भी नहीं पूछा गया। बट अब बेजुबान मतलब जो महिलाओं को नहीं पूछेंगे तो वो बेजुबान जानवरों को क्या पूछेंगे। ओके, सो दे स्टार्टेड दिस कस्टम अश्वमेध। अब अश्वमेध के साथ साथ देयर वाज अ पुरुषमेध यज्ञ, एंड इन द पुरुषमेध यज्ञ a custom developed, okay, through the Brahmanical religion or by the Brahmanical people, okay, by the Aryan society, that these people, they started sacrifice of a Purusha. Purusha means a person, a man. Okay. So when it comes to the sacrifice of a man, sacrifice of a Purusha, so पुरुष कौन था वर्ण व्यवस्था में? वो पुरुष कौन था? वो पुरुष 1 2 3 4 में से कौन सा था वो? So Shudra. So according to the religious customs during those days, as per this Varna system or this the Brahmanical system, so the Purusha belonged to the lower strata of the society, lower Varna. So okay, so they must be Shudras. They must be Shudras. अब ये शूद्र एंड देन फाइनली अनटचेबिलिटी है ना। उस समय उस दिन देखो, अभी वो सीपीआर अगर समझना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, तो ये अभी मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों का, है ना। हेमंत त्रिपुरे सर ने जो आपको बताया पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, तो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन से रिलेटेड जिसको ये हिस्ट्री पता नहीं है ना, कितने साल पहले क्या बताया था हेमंत त्रिपुरे सर ने कि भारत के 3000 साल का जो इतिहास है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। तो जिन गधों को ये हिस्ट्री पता नहीं होता है वो कुछ भी बोलते हैं। ओके, और भारत में ऐसे अनपढ़ गवार लोग बहुत है कि जो पढ़ने के बाद भी अनपढ़ रहते हैं, जिनको पता नहीं रहता, बिकॉज दे डोंट हैव दैट इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। Okay, they don't have that intellectual capability and they compare only on the basis of present situations and the present criteria, है ना। तो ये समझ लेना, इसके लिए नॉलेज लगता है, और इसीलिए ये जो है ना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरुषमेध यज्ञ था, जिस पुरुषमेध यज्ञ में शूद्रों को बलि दिया जाता था, मतलब शूद्रों को मारा जाता था, शूद्रों को किल किया जाता था। बाद में जब ये स्टॉप हो गया तो इसका प्रतीक ये नारियल बन गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रतीकात्मक सिंबोलिज्म है, ये दिस इज अ सिंबोलिज्म, क्योंकि अभी पुरुषों की बलि तो नहीं दी जाती, राइट। शूद्रों की बलि तो वो जमाना हो गया, फिर बुद्ध का जमाना आया, फिर बुद्ध ने एनलाइट किया सोसाइटी को, फिर उसके बाद ये सारी बातें कम हो गई। ओके, that's why many times I have told you that the ancient history, if you talk about the ancient history and the post Buddha, means during the with the emergence of the Buddha and after the like the preachings of the Buddhism to the people of India, then you can see that that was the first phase of revolution versus counter revolution. Okay, so under the influence of the Buddha, we can see that all these illogical, unscientific activities and the rituals and the customs almost stopped. Okay, which was a defeat of the Aryan or the Brahmanical society or the चातुर्वर्ण व्यवस्था, ठीक है। लेकिन बाद में सिंबोलिज्म चालू रहा, और ये सिंबोलिज्म वही है कि जब भी हम कोई रिलीजियस काम करते हैं तो शूद्रों के बलि का प्रतीक मतलब ये नारियल फोड़ना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ हाँ, तो ये सिंबोलिज्म है, दिस इज अ सिंबोलिज्म। अभी आप लोग, मैंने ये बताने के बाद नारियल खाना बंद मत करना, ठीक है। नारियल खाओ, लेकिन रिचुअल्स में जो नारियल फोड़ते हैं
तो उसका शायद सिंबॉलिज्म ये हो सकता है, क्योंकि ये अश्वमेध और पुरुषमेध ये यज्ञ थे, पुरुष में पुरुषों की बलि जाती थी, शूद्रों की बलि जाती थी। ओके, और ये फिर रिचुअलिज्म कंटिन्यू रहा। ओके, ये रिचुअलिज्म कंटिन्यू रहा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन इन अवर कंट्री। संस्कृताइजेशन मतलब क्या है? लोअर स्टेटा से अपर स्टेटा में जो अभी आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इन रिसेंट पीरियड, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स, बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल बेनिफिट्स, बिकॉज ऑफ द reservation policies and all these things. So those who have developed themselves economically, educationally, okay, so उन्होंने भी अपनी सब जो बुद्धि है वो गिरवी, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्विस बैंक में वो गिरवी रखते हैं। उनको भी ये समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, है ना। वो संस्कृताइजेशन की प्रोसेस होती है कि लोअर स्टेटा वाले खुद को अपर स्टेटा का समझने लगते हैं। समझना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर सिंबॉलिज्म क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और आयरनी ऑफ दिस कंट्री इज दैट कि those people who got benefited means those who got exploited from this Chaturvarna society, they are doing the same things and they are following the same cultural traits which were imposed them to continue their slavery. So those particular customs and those particular rituals today continued by those people who were at the bottom of the Chaturvarna system. Okay, तो ये थोड़ा सा मैं क्रिटिक बता रहा हूं आप लोगों को कि आयरनी इज दिस, है ना। मतलब जिस व्यवस्था ने आपका शोषण किया उसी व्यवस्था के विभिन्न आयामों को, अंगों को हम लोग आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं, सो कॉल्ड बैकवर्ड्स, सो कॉल्ड ट्राइबल्स ऑफ दिस कंट्री। ओके, एंड दोज पीपल हु आर एट द बॉटम ऑफ द चातुर्वर्ण्य सिस्टम। ओके, किसके बाद? पढ़ने और लिखने के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद वी आर फॉलोइंग द सेम ट्रेड्स। ओके, सो वी आर इन द फेज ऑफ मेंटल स्लेवरी। ये कब गायब होंगी मुझे पता नहीं है। ओके, but when it comes to the ancient Indian history, it is very important to understand all these critical analysis, है ना। और हम पढ़ने वाले लड़के हैं, IAS IPS बनने वाले या फिर ऑफिसर्स बनने वाले लड़के हैं, तो ये तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को इसी क्रिटिकल एनालिसिस के साथ पढ़ाऊं। नहीं तो फिर मुझ में और वो दिल्ली में जो टिपिकल, दिल्ली या फिर बाकी जगहों पे जो टिपिकल एक स्पेसिफिक मेंटालिटी वाले जो लोग आईएएस बनते हैं, जिनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन में स्कोप नहीं होता, कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ऐसे गधों को तो मुझे बताना नहीं है। ठीक है, सो माय एम इज टू प्रोड्यूस already almost some sort of those officers who are having that courage to transform society and that courage to introduce some positive changes in the society and to develop a scientific temper. तो इसलिए मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा इस एंगल से पढ़ाता हूँ, so that हमें पता चले कि we are following that system which is not ours. We are following that system which is imposed upon us by the people from the Central Asia, by the invaders. Okay, तो हम जैसे ब्रिटिशों को ब्लेम करते हैं, है ना, क्योंकि ब्रिटिशों की हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री हमें समझ में नहीं आती। तो कोई हमने देखा क्या भाषण में, देखा कभी आपको कि वो दे आर क्रिटिसाइजिंग द आर्यन सोसाइटी, दे आर क्रिटिसाइजिंग द वर्ना सिस्टम। ओके, हम भारत के ऊपर जब बात करते हैं इंडिपेंडेंस के ऊपर, इंडिपेंडेंस के लड़ाई के ऊपर, तो हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास बताते हैं। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का इतिहास बताते नहीं, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है। ओके, हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि वो सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे, फिर दे इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम हियर एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी एंड दे इम्पोज देयर कल्चरल ट्रेडिशंस, दे इम्पोज their illogical and unscientific practices. They divided the indigenous society on the Chaturvarna and they were responsible for the development of the caste system, and they introduced so many illogical concepts in the society, and now we are following all those traits which are associated with this system. तुम्ही ऐकलं का असं कोणत्या राजकारण्याचं भाषण आतापर्यंत? काय
No, sir. कारण ते राजकारणी सुद्धा गुलाम आहेत. आता महाराष्ट्राचं राजकारण तर माहितीच असेल तुम्हाला. हा, गाडी पकडली की गेलं दिल्ली, गाडी पकडली की गेले दिल्ली. हा हा ना, हे सगळं असं काम आहे. ओके, तुम्हाला इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन जर समजून घ्यायचं असेल तर अभ्यास करावा लागेल. तुम्हाला रशिया युक्रेन समजून घ्यायचा असेल तर अभ्यास करावा लागेल. आणि भारतामध्ये विदिन द इंडिया जर तुम्हाला इंडियाचं कल्चरल आणि सोसायटल डिव्हिजन समजून घ्यायचं असेल तर तुम्हाला भारताचा इतिहास मध्य आशियाच्या इतिहासासोबत समजून घ्यावा लागेल. तेव्हा तुम्ही जागरूक व्हाल. नाहीतर तर मग ठीकच आहे, चल ही रहा है. हर साल बच्चे निकलते हैं, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, कौन से तीर मारते हैं पता नहीं मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके. नो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, नो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन. वी आर फॉलोइंग द सेम एजेंडा ऑफ स्लेवरी. तो केवल अच्छी पोजीशन मिलना ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए. ओके, और हिस्ट्री से यही बात हमको सीखने को मिलती है. तो आगे बढ़ते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सगळ्यांना समजतंय? तेजस्वी, समझ में आ रहा है क्या? उमंग, काय उमंग? हो सर, येत आहे. हा, वैष्णवी 1, वैष्णवी 2, विशाखा, दमिता, सायली, गणेश, इस्माइल, इस्माइल. अरे जाकिर हुसैन, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ओके. प्रणवी, प्रीति, Yes, sir. आर्मी हो, मैन, sir. आर्मी मैन, आर्मी Yes, मॅन sir. रोहन. हा, Yes, sir. आला रे, समजलं रे बाबा तुला. हा, श्रावणी, Yes, sir. शर्वरी, समजतंय? ओके, चला. आशिष, येस सर. ओके, चलो. चला, आता मी पुढे जातो, नाहीतर तुम्ही एकदम क्रांतिकारीच व्हाल ऑनलाईन वरती, तर मग ते पण भारी पडेल मला. ठीक आहे. सो sacrifices and all these traditions developed, and against all these traditions, all these dogmas, okay, all these illogical things which develop in the Vedic period, there is a challenge raised by the first person, and he was Buddha. Okay, so already we talk about Buddha, we talk about Buddhism, we talk about Jainism, we talk about the philosophical doctrines of the Buddhism, and how Buddhism was responsible for the transformation of the entire society during those days. There is, you keep in mind this very important thing, that during those days and even today, means अभी मेरे को एक कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे छोटे स्टूडेंट्स हैं, दे आर इन एनडीए. तो किसी ने मुझे पूछा था कि सर भारत में, लाइक ही वाज सरप्राइज विद दिस थिंग, कि सर भारत में, लाइक व्हेन he was having this question when he studied NCERTs, and he is just in 11th standard. So he asked me question ki sir, it is, I have read that everywhere in India, in the ancient India, everywhere there were stupas, everywhere there were viharas, and in the Asia, entire Asia, there are giant statues of the Buddha everywhere. Then why don't we celebrate the birth anniversary of the Buddha, that is Buddha Purnima, in India, like rest of the festivals? तो मैंने कहा यार तू तो बड़ा होशियार निकला. ये तो क्वेश्चन बड़े बड़े लोग नहीं पूछते, तूने तो 11th स्टैंडर्ड में पूछ लिया. ओके, तो ही इज हैविंग वेरी क्रिटिकल माइंडसेट. उसने मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट ही इज हैविंग दिस काइंड ऑफ बेंट ऑफ माइंड, कि उसने वो, क्योंकि हम तो यूजुअली वी रीड, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ते हैं, स्टेट बोर्ड में भी पढ़ते हैं,
or wherever you are going, like for example in India, if you are going through the North India, South India, West India, जैसे आप गुजरात में जाओगे तो आपको ह्यूज केव्स कल्चर मिलेगा. ओके, ऑल एंशिएंट केव्स, ओके, अप टू द मेडिवल इंडिया तक की केव्स मिलेंगे आपको. महाराष्ट्र में तो आपको एवरीवेयर यू आर फाइंडिंग. And there were Chakravarti Samrats, those who were the followers of the Buddha, right from Ashoka, right from Bimbisara, okay, right from Brihadrat, Menander, okay, Kanishka, and then Samudragupta, and then Harsha, and then Pala rulers, and then even South India, North India, East India, West India, everywhere. तो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैंने फिर उसको समझाया. आधा घंटा मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया. तो फिर उसको समझ में आ गया कि भारत का इतिहास, यह इतिहास रिवॉल्यूशन वर्सेस काउंटर रिवॉल्यूशन का इतिहास है. रिवॉल्यूशन वर्सेस काउंटर रिवॉल्यूशन. अ पर्सन who is the first revolutionary of India, we can say it social revolutionary, we can say a cultural revolutionary, we can say a religious revolutionary, we can even say a revolutionary with respect to the economic perspective also. So that is he was the Buddha, है ना. अगर हम भारत में रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, और सबसे पहले क्रांतिकारी, मतलब ये इस क्रांतिकारी को जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के जो लोग हैं उनसे कंपेयर मत करना कभी भी, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन. Okay, so that personality is the Buddha, because Buddha was a great scientist. He was a great psychologist. Okay, you can say that he is the father of the psychologist, father of the scientist. Okay, तो वो व्यक्ति ऐसी थी कि जिन्होंने ये जो रिवोल्यूशन किया. रिवोल्यूशन मीन्स व्हाट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धा? रिवोल्यूशन associated with a challenge to the Varna order system, Brahmin, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. Because during the day of Buddha in 6th century BCE, means आज से 2600 साल पहले की जो सिस्टम थी, it was a system, चातुर्वर्णा system. So Brahmins, Kshatriya, Vaishyas and Shudra. जैसे उस दिन आपको सर ने बताया था, हेमंत सर ने, कि इन टुडेज हिंदू सोशल सिस्टम. ओके, तो अभी ये नाम भी बाद में आई, ये मेडिवल पीरियड का नाम है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो. ओके, so earlier in the ancient history you don't find any name or any word like the Hindus. Okay, so this is a medieval terminology. Again, there is a different history related to this word. We shall discuss afterwards. तो उन्होंने बताया था कि 4 कैटेगरीज को, 4 जातियों को अगर आप वर्टिकल लाइन में रखते हो तो कौन सबसे ऊपर आएंगी, है ना. तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने उसका करेक्ट आंसर उस दिन दिया था. और उन्होंने कहा था कि ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, ना कॉलेजेस के सिलेबस में है, लेकिन ये आपके दिमाग में बात कहीं ना कहीं से घुस गई कि ये सबसे टॉप में है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. ओके, तो बुद्धा चैलेंज दिस फैब्रिक and this was the first revolution. Okay, and Buddha developed his code of conduct, which is called as Dhamma, and those people who are following those code of conduct, those disciplines, so they created the sanghas. Okay, and so sangha means those people or the monks. Basically, monks were the participants into the sangha. Okay, they dedicated their life to the sangha and they were the disciplined people, and these people were responsible for destroying this system, and all the people belong to all the varnas during the time of the Buddha, and for a certain time afterwards they were not in a vertical line, they were in a horizontal line. क्योंकि बुद्ध के संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे, चारों वर्ण के लोग, वो चारों वर्ण के लोग बुद्ध के संघ में भिक्षु थे. और ये सबसे पहला रिवॉल्यूशन है जो कभी हुआ नहीं था, किसी ने किया नहीं था. और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ,
ये रिवोल्यूशन जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को अटैच लोग थे उनको नहीं चाहिए था, और इसीलिए बुद्ध के फिलॉसफी के खिलाफ, बुद्ध के विचारों के खिलाफ, और बुद्ध ने जो एंटायर एक शिक्षा दी थी उसके खिलाफ बुद्ध के समय से, बुद्ध के बाद और आज तक, ओके, है ना, वो बुद्ध के साथ वो बात खत्म नहीं हुई, वो कॉन्स्पेरेसी चलते रही। एंड द पीपल बिलोंग टू द आर्यन फोल्ड, ओके, उनकी जो जनरेशन टू जनरेशन थी, so they continued these conspiracies, and even in the modern time also, okay, there are few organizations, those who are working upon these ideologies, okay, and that's why there develop a theory which is called as revolution versus counter revolution. तो revolution क्या था? बुद्ध ने इस inequality के खिलाफ, ओके, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, इस हायरार्की के खिलाफ, उस इनह्यूमन अनसाइंटिफिक प्रथाओं के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, ओके, और ऐसे कुछ कंसेप्ट्स के खिलाफ जो अस्तित्व में नहीं थे. So the same is the simple example is the concept of the God. Okay, the concept of the heaven and the hell. है ना, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है. And Buddha developed a very important philosophy or the very logical philosophy which is called as the कर्म सिद्धांत. ओके, कर्म सिद्धांत बुद्ध ने कहा, कर्म सिद्धांत, जैसा कर्म है वैसा ही फल मिलेगा, है ना. आम का बीज अगर आप डालते हो तो आम ही मिलेगा, उसके ऊपर गेहूं आने वाला नहीं है, उसके ऊपर सफरचंद आने वाला नहीं है. तो बहुत ही नेचुरल बात बुद्ध ने की थी. और ऐसे लोग उस समय थे कि जो बाकी लोगों को सैक्रिफाइसेस, मतलब इन द नेम ऑफ रिलीजन they were misguiding people. So Buddha was a great mentor and he transformed the society, and that's why this was the revolution. But against this Buddha's teaching, the people belong to the Aryan fold or the people belong to the Brahmanical fold. They continued their conspiracies, they continued their struggle. Okay, and this is called as a counter revolution. So revolution बुद्ध ने किया, उसके खिलाफ करने वाले जो थे, मतलब क्रांति, उसके विरुद्ध प्रतिक्रांति, ऐसा उसे मराठी में कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जो अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती है. अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आज की डेट में, मॉडर्न टाइम्स में भी, हमारे देश में भी जो चल रहा है, उसके पीछे का जो कल्चरल रीजन है, सारे पॉलिटिक्स और सारे सोशल इनइक्वालिटीज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी और काफी सारी जो हमारी समस्या है, उसकी जो जड़ है, बेसिकली दैट लाइज इन दिस स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. एंड स्पेसिफिकली this is associated with these three periods, IVC to Vedic period and Vedic period to Buddhism and Jainism. ये आपको कोई बताने वाला नहीं है. ओके, ये जो मैं जो critical analysis, what I am telling you, nobody will tell you. Okay, nobody will tell you. And this is the most important critical analysis. Okay, IVC to Vedic and Vedic to Buddhism. Okay, so then we discuss about the life of Buddha, the life of Mahavira. We talk about the philosophy of the Buddhism. So when we talk about the philosophy of the Buddhism, we talk about the four noble truths which were declared by Buddha. तो हमने बुद्ध के चार जो नोबेल ट्रुथ्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. क्या थे वो नोबेल ट्रुथ्स बुद्ध के? फोर नोबेल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म और फोर नोबेल ट्रुथ्स, the four important, very important doctrines of Buddhism. Sir, sorrow, reason of sorrow, sensation of sorrow, and path of sorrow. नाही, आणखी कोणी म्हणजे ठीक आहे, तू काय सांगितलं. सो फर्स्ट इज वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो फर्स्ट, राइट? देन सेकंड, व्हाट वाज सेकंड? देयर इज अ रीजन फॉर द सॉरो. फर्स्ट इज वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, राइट? अरे जग में दुःख आहे की नाही आहे? जगात दुःख आहे. बुद्धांचं पहिलं आर्य सत्य काय आहे? जगात काय आहे? दुःख आहे. वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, राइट?
अच्छा, अभी ये जो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो वाली बात है, ये अलग अलग धर्म के लोगों को लागू होती है कि नहीं होती है? ये हर इंसान से लागू होती है कि नहीं होती है? और अदरवाइज दिस इज अ थिंग which is not associated with Hindus, not associated with Muslims, not associated with Brahmins, not associated with Christians, not associated with Muslims, Sikh, Parsis, Jews. ऐसा है क्या कि जग में दुख है, लेकिन जो दुख है सिर्फ बुद्ध के फॉलोअर्स के लिए ही एसोसिएटेड है? हाँ, जो बुद्ध को मानते हैं उनके ही जीवन में दुख है, जो जो बुद्ध को नहीं मानते उनके जीवन में दुख नहीं है, ऐसा है क्या? काय आशीष, असा आहे का की जगात दुःख आहे, परंतु ते दुःख जे बुद्धाला थोडंफार मानत असतील त्यांच्याच आयुष्यात आहे आणि जे नाही मानत त्यांच्या आयुष्यात नाहीये, असं आहे का? युनिव्हर्सल आहे दुःख? युनिव्हर्सल आहे की स्पेसिफिक कॅटेगरी, स्पेसिफिक सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्ट, स्पेसिफिक रिलीजनशी असोसिएटेड आहे? तर सगळ्यांच्या आयुष्यात आहे दुःख. हा, तुझ्या आयुष्यात तर खूपच दुःख आहे. हा काय असं नाहीये सर. आहे ना? हा, किती लोकांना दुःख असते? हा, 14 फेब्रुवारी सेलिब्रेट करणाऱ्यांच्या आयुष्यात तर खूप दुःख असतं. हा, कविताच लिहित बसतात बिचारे. तू गेली तेव्हा, तू आली तेव्हा, आपण दोघे बागेमध्ये बसलो होतो आणि अचानक बागच नाहीशी झाली, फळं येणं बंद झालं. काय दुःख आहे लोकांच्या आयुष्यामध्ये? काय बरोबर आहे की नाही भाग्यश्री? हा, अरे काय बोला तुम्ही, रिस्पॉन्स पण देत नाही. इस्माइल, तुम्हारे लाइफ में दुख है कि नहीं है? हाँ, अरे इस्माइल, इस्माइल ऑन करके चले गए क्या? हेलो, गेला बेटा, अंधेरी फिरायला गेला हा. नहीं सर, इधर ही हो. इधर ही हो? अच्छा, तो तुम्हारे लाइफ में दुख है कि नहीं है, बताओ मेरे को. दुख तो सर नहीं है. नहीं बराबर है? चल रहा है सब. अरे क्या बात कर रहे यार, तुम्हें बाल काटने का दुख रहता है. इतने अच्छे बाल बढ़ाए मैंने, हाँ, उस बालों को काटूंगा, हर महीने में जाना होता है. कितना बड़ा दुख रहता है. हाँ, लोग, बाल काटने का दुख है कि नहीं है? हाँ, नहीं है. पढ़ाई करने का दुख है, पढ़ाई करने का दुख है. अरे यार, कहाँ पे फंस गए, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना बड़ा दुख हाँ, है कि नहीं? हाँ, हाँ. फिर अभी कुछ साल बाद पैसा कमाने का दुख रहेगा. अगर सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसका दुख है. अच्छा चलो, जो जो चाहिए थी सर्विस वो मिली तो अच्छा है, नहीं तो अगर सबऑर्डिनेट सर्विस मिली तो उसका दुख है. हाँ, जो पसंद आया था वो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसका दुख है. कितने दुख है यार इस्माइल, बहुत दुख है. मैं तो बहुत दुखी आदमी हूँ. हाँ. Okay, so so world is full of sorrow. So which like देखो, so this is irrespective of sect. So that's why the first philosophy or the first doctrine which is developed by Buddha, so that is universal truth. It is not associated anyway. और उस समय जब बुद्ध ने ये बात की तो उस समय हमारे पूरे वर्ल्ड में as such कोई भी रिलीजियस फॉर्म नहीं था. ये बात ध्यान में रखना. उस समय ना इस्लाम था, उस समय ना क्रिश्चियनिटी थी, उस समय ना हिंदुइज्म था. उस समय उसके पहले ब्राह्मणिज्म डेवलप हुआ था, ये चातुर्वर्ण व्यवस्था डेवलप हुई थी. ओके, तो उस समय ये बाकी रिलीजियस कंसेप्ट्स उस समय नहीं थे. ओके, ये सारी की सारी जो बातें हैं इवेंचुअली डेवलप. ओके, इवेंचुअली डेवलप. इफ यू सी ऑल दिस थिंग्स with the help of the history, then you would see, you would come to understand कि what actually happened, right? तो basically बुद्ध ने उस समय हर व्यक्ति के लिए बात कही कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. तो लोगों को बुद्ध बताते थे कि जो सॉरो है या जो दुख है वो किस तरह से है. आपका जन्म ही दुख के साथ होता है, ये बात ध्यान में रखो. आप आते हो, रोते रोते आते हो, राइट? गाने भी बहुत लोगों ने बनाए उसमें.
है ना, तो आते हो तो रोते रोते आते हो, तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। अगर आप रोओगे नहीं तो डॉक्टर फिर कंफ्यूजन में आ जाता है कि बच्चा जिंदा है कि मर गया। ओके, वो रोना बहुत जरूरी है। ओके, सो आपका जन्म ही वैसे है, रोते रोते आना है, ठीक है। तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, देयर इज अ रीजन फॉर सॉरो। बुद्ध ने उसके बारे में मैंने बताया था कि रीजन फॉर सॉरो, इग्नोरेंस, डिजायर, डिजायर एंड देन व्हाई डिजायर, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हमें पता नहीं है ना, नॉलेज नहीं है। डिजायर है, व्हाई डिजायर, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। एंड देन सिजेशन ऑफ द सॉरो, उस जो दुख है उसका निरोध है, मतलब उसको नष्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी डिस्कस अर्यो अट्ठांगिको मग्गो, दैट इज आर्य अष्टांगिक मार्ग। With respect to examination, you can get questions related to this four noble truths of Buddha. You can get questions related to the Aryo Atthangiko Maggo or the Arya Ashtangik Marg, which we discussed earlier. Aryo Atthangiko Magga, Arya Ashtangik Marg. Eightfold path, सम्यक वाका, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, है ना। ये जो सारी जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एटफोल्ड पाथ। So on every concept you can get question, okay, or sometimes you can get questions overall on the philosophy of the Buddha, doctrine of the Buddha. So the main philosophy of the Buddha revolves around these four noble truths and the Arya Ashtangik Maggo. आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें लास्ट में था समाधि का, है ना, मग, मेडिटेशन। ओके, सम्यक समाधि, मेडिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो बताया गया है। एंड देन इवेंचुअली देयर डेवलप द 10 प्रिसेप्ट्स, 10 पारमिता। 10 पारमिता डेवलप हुई। बुद्धिज्म का एक कंसेप्ट है। इफ यू गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कि which of the following philosophical concepts are associated with the Buddhism? Okay, so one, four noble truths, second, Arya Ashtangik Maggo, and third, 10 paramitas. Okay, and then fourth अगर उन्होंने और कुछ डाल दिया और आपको पूछा प्रीलिम्स में, okay, 1 2 is correct, 1 2 3 is correct, है ना। सपोज उन्होंने चौथा और डाल दिया उसमें कि बाबा क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, है ना, ये अगर डाल दिया ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, सो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद बुद्धा। ओके, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी और द बुद्धाज फिलोसॉफी, है ना। बुद्ध ने वो जैसे आपको जितने भी हॉरर मूवीज है, सबसे खतरनाक तो हॉरर मूवीज आपके साउथ इंडिया की होती है। ओके, सो इफ यू वॉच दो साउथ इंडियन हॉरर मूवीज, तो ये बाटली में भूत रहता है, ये बाटली में से वो ढक्कन खोलता है, वो फकीर लोग दिखाते हैं, वो दरगाह वर्गा के जो रहते हैं ना, वो, है ना, वो लोग दिखाते हैं, वो झाड़ू रहता है। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि हमारे घर में, सबके घर में झाड़ू रहते हैं, लेकिन हमारे घर का झाड़ू ये भूत के खिलाफ काम नहीं करता, वो उनके हाथ में जो झाड़ू रहता है वो कैसे काम करता है। वैसा झाड़ फूक फूक फाक, और फिर वो मोर का पंख का ये रहता है, वो बराबर ये इसमें से वो बॉटल में वो भूत को डाल देता है, और फिर ये किसी औरत, और खास करके ये जो भूत जो आता है ना, ये खास करके महिलाओं के आंग में ज्यादा आता है। हाँ, तो वो हॉरर मूवीज में आप देख लेना, वो किसी पुरुष के शरीर में ज्यादा नहीं आता, वो महिलाओं के शरीर में ज्यादा आता है। पता नहीं, अभी आप लोग काफी सारे गर्ल्स कैंडिडेट है, सो यू शुड हैव दिस सब्जेक्ट फॉर पीएचडी रिसर्च, है ना। कोई इस पे रिसर्च करे कि बाबा भारत के महिलाओं के आंग में ज्यादा भूत क्यों आता है ना, या भूतनी क्यों आती है, और ये बॉटल में कैसे बंद हो जाता है। तो इसके ऊपर अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो ये अच्छा सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए। तो ये बिलीफ क्या है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब कोई मर गया और मरने के बाद फिर उसकी जो आत्मा है, ये भटकती आत्मा, ये इसके शरीर में आ गई, किसी पुरुष के, कभी किसी ज्यादातर महिला के, और फिर वो झाड़ू फूक वाला आता है और वो फिर बाटली में बंद कर देता है और कुछ मंत्र वंत्र करता है, और फिर वो खत्म हो जाती है वो कहानी उसकी, ठीक है। वो मोक्ष वगैरह का सिद्धांत आता है उसमें। व्हाट बुद्धा सेड that there is no as such transmigration of the soul. बुद्ध ने जो उनके लाइफ में फ्रॉम 29th years of age up to the, हाँ आदित्य, कई प्रश्न है? No, I have something to say about this thing. हाँ, This this entire
So what generally happens is that like India is like a patriarchal society. So in हाँ here, women are not like allowed to express freely. हाँ हाँ So हम्म what happens is that they try to express themselves through such means which are allowed. हम्म So for example, she might not be allowed to dance in a wedding. Like if she does that, she might be like chastised and looked down upon. But if she does the same dance in a religious this thing, Gondar, हम्म then that may not be like looked down upon. So that's one way of releasing, like that's one way of having fun, let's say. अच्छा ओके अच्छा म्हणजे भूताच्या संदर्भात बोलतोय का तू की हा म्हणजे तो महिलांच्या गोंधळ असतो किंवा लाईक हे जे अंगात येतं सो हा इट इज हा दॅट वे सो इट्स लाईक वन वे ऑफ रिबेलिंग अगेन्स्ट द सिस्टम ओके अच्छा इट्स लाईक युझिंग द सायकोलॉजिकल सिस्टम अगेन्स्ट हा 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 फ्रॉम अ सायकोलॉजिकल सायकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ तो हे आहे हा फॅक्टर आहे की सो इट्स तिचं जे लाईक शोषण झालं तिचं जे एक्सप्लॉयटेशन झालं किंवा तिच्यावरती ज्या काही रेस्ट्रिक्शन्स इम्पोज केल्या त्याच्यातून कुठेतरी ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या डेव्हलप झालेल्या असाव्या आहे की हो नाही म्हणजे बिकॉज लाईक फ्रॉम रिलिजियस पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा लाईक हा हा पीपल कॅनॉट से एनिथिंग नाव लाईक राईट अंगात राईट देवी राईट आली आहे तर लोक काही बोलू नाही शकत लाईक हो हो लग्नाच्या इथे नाचली किंवा होळीमध्ये हो तर लोक हो बोलतात बट आता हो बोलू हो शकत नाही हो काही So बरोबर that's like बरोबर a बरोबर clever way of manipulating it हम्म against the हम्म system. हम्म 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 हा बरोबर आहे बरोबर आहे ते तसं कारण असू शकतं सायकोलॉजिकल रिझन जे आहे ते असू शकतं ठीक आहे आणखी कोणाला काही याच्यावरती वाय व्हॉट इज द रिझन ये बेटा ये हा ये हा याच्यावरती कोणाला काही लाईक हे जे होतं म्हणजे मूवीज मध्ये पण हे टार्गेट केलं जातं ओके अँड व्हॉट आदित्य इज सेइंग दॅट इज समहाऊ हा 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 somehow correct. Okay. So this is a problem which is related to so many what we can say, so many restrictions and much exploitation of the women for so many centuries. आणि त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन साधारणतः असं होऊ शकतं किंवा आणखी दुसरा एक पार्ट त्याच्यामध्ये असा आहे की प्रत्येक ठिकाणी अशा गोष्टींमध्ये महिला ज्या आहे अशा ज्या अघोरी गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये महिलांवरतीच अशा गोष्टी इम्पोज करण्यात आल्या तर तो एक पण पार्ट असू शकतो म्हणजे दोन गोष्टी त्याच्यामध्ये असू शकतात ओके एनिवे सो ट्रान्समायग्रेशन ऑफ द सोल that is not as such accepted by the Buddha during those time and this is also one kind of revolutionary thinking because what Brahmanical system impose they developed these kind of concepts okay these kind of concepts they develop that there is a soul और इस सोल को मुक्ति मिलना आवश्यक होता है और फिर मुक्ति मिलनी है तो सैक्रिफाइसेस करो देखो कितनी खतरनाक बात है मरने के बाद भी आदमी को मुक्ति नहीं मिलती ये एक एक सोच लोगों के ऊपर इम्पोज कर दी गई कि इवन आफ्टर डेथ दैट आत्मा दैट सोल is moving from one body to another body until and unless he get freedom. Okay. तो फिर मुक्ति चाहिए तो क्या करना है? To sacrifices. What Buddha said? See, everywhere there is a revolution versus counter revolution. What Buddha said? Buddha said that there is no need of such kind of illogical sacrifices. Buddha concentrated upon your karma siddhant. Okay, theory of karma. Okay, that आप इसी लाइफ में जो भी करते हो वो इसी लाइफ में करते हो
Okay, there is a concept of rebirth, but that is a different. Okay, that is a different concept. जैसे बारिश आती है, जहां पे पानी होता है, मतलब पानी नहीं होता, वहां पे पानी गिरने के बाद वहां पे आपको एक नया कल्चर डेवलप होते हुए दिखता है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट समहाउ साइंटिफिक दिस थिंग. ओके, अभी उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे फिलोसॉफीज में. बट व्हाट बुद्धा सेड कि देर इज नो एज सच कंसेप्ट ऑफ सोल, और व्यक्ति मृत्यु के बाद वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसका ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होता है, वो खत्म हो गया. ओके, एंड व्हाट बुद्धा सेड कि व्हाटएवर हैपनिंग एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग, you need to perform your positive karmas, or few people are committing negative karmas on this earth planet only. यहीं पे वो होते हैं, वो जो कर्म होता है यहीं पे होता है, और यहीं पे आपको उसका, जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो बैंक वाले आपको उसके रिटर्न्स देते हैं, है ना? तो वैसे ही रिटर्न आपको आपके कर्मों के मिलते हैं. राइट? आपने हिटलर की कहानी सुनी होंगी, आजकल काफी उसका वायरल होता है. तो हिटलर हो या मुसोलिनी हो इटली का, इन दोनों की जो डेथ थी वो बहुत बुरी तरीके से हुई थी. पता है आप लोगों को? अरे अवेयर अबाउट दिस थिंग? यस और नो? अरे यस और नो? आर यू अवेयर अबाउट these two people? They were the despotic ruler, they were the autocratic ruler, they were those people who were responsible for the for imposing heavy restrictions on the section of the society. और ये लोग ऐसे थे कि जो 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों लाखों लोगों के मृत्यु के लिए कारणीभूत थे. इनका अभी शायद पुनर्जन्म इजराइल में हुआ है, और मेरे ख्याल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हुआ है. अभी इसमें कितने लोग जाएंगे किसी को पता नहीं. हर युग में एक हिटलर और एक मुसोलिनी होता है, हर युग में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन फिर जो मरते हैं तो वो कुत्ते की मौत जाते हैं ये लोग. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द डेथ ऑफ द हिटलर, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द डेथ ऑफ द मुसोलिनी. अगर नहीं पता है तो पढ़ लेना. कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है. ओके, उसके लिए ऐसा नहीं हुआ कि बाबा हिटलर मर गया और हिटलर की फिर आत्मा उधर से भारत में आई, भारत से पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में गई, उधर से पैलेस्टाइन इजराइल में गई. ऐसा नहीं हुआ, वो मर गया, अपनी मौत वो मर गया. ठीक है, मुसोलिनी की भी मौत वैसी हुई. सो बेसिकली, एंड यू वुड सी द डेथ ऑफ, और whatever you would see that those people who are doing the great for the society, okay, who are having constructive contribution in the life of the people, who are taking efforts to change the life of the people, so you see their life, they are having peace of mind. वो पीस ऑफ माइंड के साथ जीते हैं. उनकी अगर मृत्यु होती है तो लोगों को दुख होता है. आपकी मृत्यु पे हजारों लाखों लोगों को दुख होना, ये आपकी अचीवमेंट होती है. और आपके मरने के लिए लोगों ने प्रार्थना करना, ये आपके लाइफ का सबसे बुरा और सबसे बैड और सबसे निगेटिव फेस होता है कि ये मरना चाहिए, ये तो कुत्ते की मौत मरेगा. तो ये जो बद्दुआएं आती है लोगों की, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव कर्मास. ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके लिए फिर आपको वो स्वर्ग में या नर्क में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको यहीं पे प्लैनेट अर्थ पे ही मिलता है, सब कुछ यहीं पे मिलता है. ओके, एवरीथिंग. बट व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द रिलीजन, व्हाट illogical theories developed by these people here in India that perform the sacrifices. ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, और इसी के खिलाफ भगवान बुद्ध ने अपनी लड़ाई लड़ी. And when Buddha taught the karma siddhanta to the people, then the people change.
Okay, the people belong to the different varnas of the society, including the Brahmins. They changed their mindset and they became the lay followers of Buddha during those days. And this impact of the Buddha continued for the larger centuries. Okay, you can see that the impact of the Buddhism continued up to from 6th century BC till the 12th century AD. बहुत बड़ी बात थी. और एशिया, ओके, एशिया में सारे एशिया में फैल गया. Okay, if you go to the poor nations like Myanmar and the Lanka, Sri Lanka, okay, and this Bhutan, so you would find that there are giant statues of Buddha there. People are poor. People are, means they are not living in extreme poverty, but they are following ethical lifestyle. Okay, they are those people who are actually practicing Buddha's philosophy other than the people of India. Okay, like in India, we forgot the philosophy of the Buddha. Okay, and now we are not in that mental phase of transformation. It will take much time. But in the nearest countries, like in Bhutan, in Thailand, in the rest of the countries of the Asia, okay, you would find the people are practicing the actual philosophy of the Buddha. Okay, but here in India, what continued? Here in India, the continuation of the revolution versus counter revolution. जो भी साइंटिफिक बात बुद्ध ने कही, उस साइंटिफिक बातों को अनसाइंटिफिक बातों में कन्वर्ट करने की कॉन्स्पिरेसी हमारे देश में चालू हुई बुद्ध के समय से, तो वो आज तक है. ओके, सो मैं आपको like I will tell you so many things related to this in the continuous section. अभी बुद्ध के साथ हमने जैनिज्म की भी बात की थी. ओके, सो जैनिज्म very important philosophy. Jainism or the 24th Tirthankara, that is Vardhaman Mahavir. So Vardhaman Mahavir was also a great personality, and both were the contemporary, but Buddha was elder to Vardhaman Mahavira as per the historical references. You can get questions related to the comparative analysis of the Buddhism, जैनिज्म एंड ऑल्सो ब्राह्मणिज्म. ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कंपैरेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं. तो जैनिज्म की हमने बात की थी, जैसे बुद्धिज्म में ट्रिपल ज्वेल्स है, ट्रिपल जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धम्मा एंड संघा, जिसका मैंने सिंबल आप लोगों को बताया था. व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस ट्रिपल जेम? व्हाट इज द सिंबल? व्हाट सिंबल आई हैव टोल्ड यू? अ सिंबल ऑफ ट्रिपल जेम्स. ओके, सो दैट इज द ट्राइडेंट. ट्राइडेंट है ना, हमने बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि बुद्ध का जो ट्रिपल जेम्स था वो अभी महादेव के हाथ में है. वो हमेशा ये त्रिशूल हाथ में लिए रहते हैं. अब ये सिंबोलिज्म भी लोगों को पता नहीं है. ओके, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हु एक्चुअली वाज महादेव, राइट? वो जो भारत में सिंबोलिज्म की बात चली थी, सिंबोलिज्म मीन्स व्हाट? काफी सारे बातें जो थी वो सिंबॉलिक फॉर्म में डेवलप हुई. उसके लिए बहुत डीप नॉलेज होना होता है. ओके, काफी सारी बातें डेवलप्ड इन अ सिंबॉलिक मैनर. तो ये ट्राइडेंट शंकर के हाथ में आ गया, महादेव शंकर के हाथ में. मैंने बताया था आप लोगों को, लिंग का सिंबल बताया था आप लोगों को, शिवलिंग जिसको आज की डेट में लोग कहते हैं, दैट इज नथिंग बट अ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. लेकिन अभी हम अलग ही कुछ करते हैं उससे रिलेटेड, है ना. हम उसके ऊपर दूध डालेंगे, बेल चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. एवरीथिंग वी हैव एक्सेप्टेड इन अ वर्शिपिंग फॉर्म. उसके पीछे के सिंबोलिज्म, उसके पीछे के कंसेप्ट्स हमें समझ में नहीं आते, बिकॉज वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दोस कंसेप्ट्स आल्सो. Okay, so that is a concept of ancient Indian history in the Valley civilization. Okay, in the modern times that is a corrupted form. मॉडर्न टाइम्स में वो करप्टेड फॉर्म है. ट्राइडेंट को हम समझ नहीं पाते बिकॉज ट्राइडेंट इज अ सिंबल ऑफ बुद्धिज्म, ट्राइडेंट इज अ सिंबल ऑफ बुद्धा धम्मा एंड संघा, बट वो हम भूल गए. ओके, एंड वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ ट्राइडेंट. वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस पर्सनैलिटी इज. महादेव कौन था, है ना. वो कैलाश वाली कहानी हमको सदियों से पढ़ाई जाती है, हम उसी के ऊपर विश्वास रखते हैं.
खत्म काम, ठीक है। तो हिस्टोरिकली हम सोचते नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री की हत्या अगर किसी देश में हुई होंगी तो वो भारत में हुई है ना। इतिहास की हत्या जिस देश में हुई है उस देश का नाम है भारत। हाँ, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है अभी। हाँ, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी कोई मेंटर यूज नहीं करेगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग विद अ वेरी अथॉरिटी, ओके, एज अ पर्सन विद अथॉरिटी इन दिस सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि इतिहास की जितनी हत्या भारत में हुई है, ऐसी हत्या किसी देश में नहीं हुई है ना। और इतिहास गवाह है, इतिहास को ही पता है कि कितना उसने सहा है, ओके। So we are not in a mood to accept these realities. Okay. So when it comes to the symbolism, so these are the symbols. So Buddhism का symbol है, बुद्ध धम्म संघ का symbol है trident. Symbolism में बदल गया, उसका हाथ वो आ गया हाथ में। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि the trident is related to which religion, so उसका आंसर हिंदुइज्म नहीं है, that is Buddhism actually, because that is associated with Buddha, Dhamma and Sangha actually. राइट, इनफैक्ट यूर 4 स्वस्तिक का जो सिंबल है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दैट इज रिलेटेड टू द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म। उसको घुमा दिया है ना। अभी दिवाली आएंगी तो लोग सामने निकालेंगे, लेकिन पता नहीं है, लड़कियों को पता नहीं है व्हाट इज दैट सिंबल, किसी को पता नहीं है, बस सिंबल निकालना है, रांगोळी टाकायची, तेवढंच आम्हाला माहिती आहे। वी डोंट थिंक अपॉन ऑल दो सिंबॉलिज्म, ओके, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द हिस्ट्री, है ना। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वी आर फॉलोइंग करप्टेड सिंबॉलिज्म, ओके, वी आर फॉलोइंग करप्टेड सिंबॉलिज्म, बट हर एक सिंबल के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिसको खोजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई अलग बात होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पढ़ाई के बियॉन्ड एक अलग दुनिया है हमारे देश के कल्चर की और हिस्ट्री की, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। Everybody, nobody will tell you all these things, this analysis. I am trying to tell you this thing, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे गधे ऑफिसर्स ना बने कि जिनके दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन वाली सोच ना हो, क्योंकि ऐसे ही लोगों की ज्यादा पार्टिसिपेशन इस देश के ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोगों का है कि जिन्होंने पढ़ तो लिया लेकिन जिन्होंने समझा नहीं। पढ़ना एक अलग बात होती है और समझना एक अलग बात होती है, और समझने के बाद जिम्मेदारी उठा के थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना, लोगों के दिमाग को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना, ये अलग बात होती है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। एनीवे, सो इन एग्जामिनेशन यू वुड गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, ओके। तो जैनिज्म में भी रत्नोत्रया है ना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रत्नोत्रया, Triratna in Buddhism and Ratnotraya in Jainism. Right knowledge, right faith, right action. Right knowledge, right faith, right action. रत्नोत्रया, देखो त्रिरत्न रत्नोत्रया। और ये जो एंशियंट इंडिया में ये जो महावीर और ये जो सिद्धार्थ गौतम हो गए, ये रिलेशंस में थे, है ना, ये रिलेशंस में थे एक दूसरे के, बिकॉज दीज पीपल, okay, these great personalities belong to the same republican form of government. आज की डेट में हम ऐसे कह सकते हैं कि they were the cousin of each other, है ना, ये भावकी वगैरह म्हणतात ना तशा टाइपचा, because they were from the republican form of government, and since they were from the republican form of government, we can say they were having democratic mindset, and that's why both the Mahavira and the Buddha, they went against the Brahmanical religion. They went against the religion which was based on the Chaturvarna system, and they questioned the supremacy of the Brahmins in the society. They questioned the existence of the God, the theory which was promoted and imposed on the indigenous people by the Brahmins or by the people belong to the Aryan clans. तो दोनों ने अपोज किया। Okay, आज की डेट में अभी अगर if you see the Jainism, so Jainism is nothing but a second version of the Brahmanism. Mostly अगर आप देखते हो तो, okay, उन्होंने भी फिर वो long term में they also accepted eventually the caste system. They also started practicing some sort of discrimination everywhere. तो modern times में तो ये मतलब आप लोग अगर देखोगे तो ये वो ओरिजिनल जैनिज्म और आज के इसमें काफी डिफरेंस है। ओके, सो बिकॉज
in India, later on, we can see the influence of the Brahmanical principles. Okay, we can see the influence of the Brahmanical culture on the entire Indian society, and the everything is controlled by these forces. Okay, so in the modern times, we can see the Indian society with the cultural and the religious influence of the Brahminism. Okay, तो आपको जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, द फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म, रत्नोत्रय आएंगे. You can get questions related to the literature of the Buddhism and Jainism. Okay, Buddhism का literature क्या था, Jainism का literature क्या था. Okay, you will get questions related to what Buddha taught, what Mahavira taught. Comparison पूछेंगे. Okay, you can get questions related to the influence of the Buddhism and Jainism on the political life of those days, on the culture of those days, and even after that, on the economy of the ancient Indian history. Okay, and then rest of the so many things. तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन जो है इसके ये दोनों से रिलेटेड आ सकता है. Okay, and then if you see the continuous influence, okay, continuous influence on the Indian society, then you need to think about the Buddhism. Okay, because you would see the continuous effect of Buddhism on the Indian society, and at certain spaces, okay, at certain places, you would see the influence of the Jainism. So Jainism का जो इम्पैक्ट था, जो इफेक्ट था, वो स्पेसिफिक जोन्स में था भारत के, मतलब तब भी वो स्पेसिफिक जोन्स में था, आज भी वो स्पेसिफिक जोन में था. आयरनी क्या हुआ, मतलब व्हाट अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म. बुद्धिज्म, which was the ancient religion of India or the ancient philosophy of India, almost 90% of people of the Indian society, almost for the 1000 year at least, those who are the lay followers of the Buddha and his philosophy, later on, eventually, because of this revolution, counter-revolution theory, the influence of the Buddhism and the Buddha's philosophy declined. Eventually, I will tell you so many reasons and rest of the things related to the Buddhism. And you would find the religion which was a faith of the ancient history, it became a minority religion. And today, Buddhism is officially a minority religion of this country. Okay, I don't say it is a religion. Okay, because I better know the concept of the religion. So मैं किसी भी मतलब ये सारी की सारी फिलोसॉफीज है ना, इसको रिलीजन या धर्म का नाम देना ये गलत बात है. एक्चुअली जो पढ़े, जो प्रॉपरली रिलीजन के कंसेप्ट को समझते हैं, वो इसे धर्म नहीं कहते. मैं नहीं मानता हूँ पर्सनली. ठीक है, तो हम लोग समझते नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वो इस तरह से सेग्रीगेशन किया, ये धर्म वो धर्म, ये धर्म वो धर्म. बेसिकली धर्म की जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, एंड द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इज रिलेटेड टू द नेचर्स रूल. ओके, रूल ऑफ नेचर, निसर्ग के नियम को धर्म कहा जाता है बेसिकली. ओके, एंड द रूल ऑफ द नेचर, and accordingly it's interlinking with the human being and the animals. That is basically postulated by the Buddha, है ना. तो बुद्ध का जो फिलॉसफी है वो नेचर से रिलेटेड है. Okay, so that's why if you try to understand the concept of the religion, then if you are finding that the things, okay, under the name of religion are not according to the natural practice or the natural rules, then don't consider that particular sect or that particular group as a religious group, है ना. मतलब नेचर बोलता है कि नेचर ने, सपोज हम अगर बात करते हैं नेचर की, तो नेचर ने अगर डिस्क्रिमिनेशन किया संपूर्ण विश्व में, तो दैट इज जस्ट रिलेटेड टू व्हाट यू कैन से, दैट इज जस्ट रिलेटेड टू द मेल एंड द फीमेल, है ना. ये ऐसा एक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन है. बाकी वो ट्रांसजेंडर्स वगैरह कैटेगरीज वगैरह जो आती है, ओके, वो तो अलग बात है, वो भी साइंटिफिक बातें हैं. लेकिन नेचर ने ये डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद ह्यूमन बीइंग ने दूसरा डिस्क्रिमिनेशन किया as far as the India is concerned, okay, which is related to Chaturvarna and which is related to the
transformation of the Chaturvarna into the caste system, and again the different caste divided into the subcaste. Okay, and these particular caste system and this particular division of the different caste into the subcaste, that became a conspicuous feature of some religion. So अगर किसी धर्म का फीचर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसे हम धर्म कैसे कहेंगे? राइट अगर कोई धर्म ये कहता है कि ये अछूत है या ये शूद्र है या अति शूद्र है और ये अपर स्ट्रेटा है, ये लोअर स्ट्रेटा है, या फिर कोई धर्म ये कहता है कि भाई महिलाओं ने पति के मरने के बाद सती जाना चाहिए, या अगर वो विधवा होती है तो उसको कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो ये फिर कैसा धर्म है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना बहुत जरूरी है. एंड बुद्धा raised this question, and then when Buddha raised this question, so the people realized कि यार कुछ तो गड़बड़ है. जैसे मैं आपके सामने कभी कभी क्वेश्चंस करता हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में आती है बात, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आती है, कुछ लोगों के दिमाग में समझने के बाद भी वो बोलते हैं कि सर तो कुछ भी उटपटांग बातें कर रहे हैं, हमारा तो सबसे बढ़िया है भाई, हमारा काम तो अच्छा चल रहा है, हम तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे. महिलाएं भी कहती होंगी, गर्ल्स भी कहती होंगी की मी तर सगळा एन्जॉय करते है ना, मला तर सगळेच अधिकार आहेत, माझ्यासोबत तर काहीच होत नाही आणि मी तर माझी परंपरा फॉलो करते है ना. तो सबसे अच्छी बात है, फिर अच्छी बात है ना. क्योंकि क्या होता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं. कुछ लोग अंधे होते हैं कि जिनको दिखता ही नहीं है, और कुछ लोगों को सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, ओके, लेकिन वो बोलते हैं कि हमको दिखता ही नहीं. तो तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. ओके, सो दैट इज अ प्रॉब्लम. ये आदित्य तुला काय बोलायचं? Like there are many people I have seen like this, like who do not have the basic understanding of recent history, like how the life was before the Hindu civil law came into existence. Like they don't have the knowledge of that basic aspect, and they think that this is how it is always. It was always like this is how it is always used to. Like they have Yes. no clue that how the society was before Hindu civil code and how it changed after that. So like it's not included in our education. Like it's not. It is just named that with constitution there was this Hindu civil code which came, and then so on and so forth. But the details of that, like how it was before that, it is not included in our history. Like not even in 12th maybe. I Right, mean, right, like right. a lot of people Right, don't right. even study history after 10th. So it's like only the arts people do. So the people who have done commerce and science, they have absolutely no idea of what it is. And that is why Right, there is a right. lot of But ignorance. they are getting so many things from the society. They are getting so many doses from society, no? I ते mean, बरेचसे like people, injections त्यांना. like people don't understand the simple fact that intercaste marriage is possible only because of Hindu civil law. Like in the law of the Smriti, intercaste marriage doesn't exist. Right, Like right. people take such things for granted, and like it's very frustrating sometimes. In fact, in Haryana, if you are going to the Khap Panchayat, if you see the history of Khap Panchayat, then they don't allow marriage outside their caste, outside their communities. And if somebody is doing that, so the punishment is killing, murder of those couple. That is called as honor killing in our society. माहिती है ना, honor killing? There are so many cases related to honor killing. So whatever I am telling you and whatever I am teaching you, so this will help you, all of you, to understand those social issues in India. Means whatever we are discussing in history, so that is very beneficial to understand the social issues related to the backward communities, related to the minorities, related to the women, and related to so many groups in Indian social system. तो ये हिस्ट्री का नॉलेज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो you would interlink so many things at your this social issues topic. Okay, so this is important. Anyway,
So Buddhism, Jainism, overall, I'm just reviewing the things. So that's why I'm not going into detail. So you just need to understand the impact of both these philosophies on the Indian society. And afterwards, we discuss Mauryas, right? So Magad we discuss with respect to Magad, different dynasties. First dynasty, that is, what was that name of first dynasty? First Haryanka. dynasty, Haryanka dynasty, then second Shushunagas, and then your Nandas. Okay, then after Nandas, there were Mauryas. Okay, so about Mauryas, we started discussion. We discussed Chandragupta Maurya. Okay, we discussed Bindu Sara, and then we started discussion with the Ashoka, and Ashoka was a person. Okay, Ashoka was a person who is a very important personality. काहीतरी मी आता एक पोस्ट बघितली होती व्हॉट्सअप वरती, ती व्हायरल होत आहे की अशोकाची काय समाधी सापडली म्हणे बाबा, सन्नती म्हणून आहे कर्नाटकाला, त्या ठिकाणी. आय डोंट नो की वेदर दॅट इज फेक न्यूज और रियल न्यूज. Okay, but Ashoka, a person, a great administrator of Indian subcontinent, and we believe that the historians believe that Ashoka was a person who actually implemented the philosophy of Buddhism in administration, and that's why there came into existence the very concept of welfare state. है ना. तो अशोक एक पहला ऐसा भारत का सम्राट हुआ है जिसने बुद्ध के जो ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट्स थे, उस कंसेप्ट्स को एक्चुअल उसके एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्लीमेंट किया. ओके, एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द अशोका, his provinces, okay, or the Mauryan provinces, okay, and specifically the Ashoka. So we came to know that Ashoka appointed or created a new post. He was a Dhamma Mahamatta. Okay, so Dhamma Mahamatta means those persons who were responsible to understand the problems or the issues of the people and to find out solution for their problems. Okay, so the very important post, it was Dhamma Mahamatta. So Dhamma Mahamattaची post अशोकाने क्रिएट केलेली होती. And then Ashoka convened the third Buddhist council, and after the third Buddhist council, Ashoka was a person who sent missionaries in the different directions of India and the world for the promotion of Buddhism, okay, for the promotion of Buddha's philosophy. And accordingly, you can find that Ashoka's son and the daughter Sangamitra and the Mahinda, okay, or the Mahindra, they went to the down south, okay, they went to the Sri Lanka. They planted a branch of the tree from the Bodh Gaya at Sri Lanka, okay, and you can see that today that tree, okay, that is under the protection of the Sri Lankan government, and there is a special protection given to that tree, okay, at Bodh Gaya, which is a place of the Buddha's enlightenment. There are so many problems with respect to that vihara at Bodh Gaya, okay, and Indian government is not at all taking care of that specific place, okay, and that is there is a struggle for acquiring the authority of that place, okay. So in India, we are not paying attention to the places which are associated with the Buddha, but in the rest of the nations in the Asia, they are taking utmost care and they are showing utmost respect towards those things which are associated with the Buddha and his life. Okay, so they are taking care of that tree, branch of that tree, है ना. तो श्रीलंका में वो जो ब्रांच है उसकी केयर श्रीलंकन गवर्नमेंट लेती है. ओके, तो ये अशोक का काम था
जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है श्रीलंका में पहुंचा। एंड देन वी कैन सी इवन ग्रीक में भी उन्होंने एम्बेसडर्स भेजे थे अपने, ओके, भिक्षुओं को भेजा था, अलग अलग पार्ट्स में भारत के भेजा था। एंड वी कैन सी ही नॉट जस्ट डीड the promotion of the Buddhism or the Buddha's philosophy, but he actually implemented those great philosophical traits into administration. And that's why, with the compassionate approach, he developed so many facilities for the human beings and the animal beings. व्यक्ति के लिए मतलब लोगों के लिए और प्राणियों के लिए समान रूप से अशोक ने काफी सारी फैसिलिटीज दी थी। Okay, Ashoka never picked up weapon after the war of Kalinga. अशोक ने जो शस्त्र नीचे रख दिया, वो शस्त्र नीचे रखने के बाद अशोक ने फिर से शस्त्र उठाया नहीं। कलिंग के युद्ध के बाद दूसरा युद्ध कभी हुआ नहीं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सो द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धा's philosophy, and then he worked continuously for the welfare of the people. Okay, and the most important thing, Ashoka was the first emperor of India, a person who ruled from north, like from Magad, that is today's Patna or the Pataliputra, from Magad to the southern part of India up to the Karnataka and somehow lower portion below that Karnataka up to today's Gujarat, Rajasthan, Maharashtra. Okay, this Maharashtra or this Konkan region was a province which was under the Mauryas. Okay, in the today's Afghanistan and today's Pakistan, there was a Mauryan rule, and everywhere you can see the major inscriptions of Ashoka, minor inscriptions of Ashoka. अशोक के स्तंभ है भारत में, अनेक जगहों पे अशोक के स्तंभ है। और अशोक को मैं सैल्यूट इसलिए करता हूं क्योंकि अशोक हमें समझ में नहीं आता था। अशोक ने अगर उसके पिलर इंस्क्रिप्शंस, मेजर माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस नहीं कार्व किए होते तो अशोक हमें पता नहीं चलता था। ओके, सो वी नीड टू थैंकफुल फॉर दैट ब्रिलियंट what you can say, that brilliancy of Ashoka. Okay, and we get to know about the Ashoka and Ashoka's administration and Ashoka's contribution, okay, in the Indian history because of his inscriptions. और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थैंक्स तो हमें उस जेम्स प्रिंसेप को देना चाहिए जिस व्यक्ति ने अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के उसके ऊपर बेचारे ने काफी सारे दिन, काफी सारे महीने मेहनत करके he deciphered those inscriptions of a Brahmi script, of Aramaic script, of Kharoshthi script, of Greek script, and deciphered those inscriptions. And finally, he found out that there was a person named Ashoka, and he was the first Chakravarti Samrat or the first emperor of this country. Okay, तो ये सारी बातें हमने इसके पहले के जो कुछ सेशंस हुए थे उसमें डिस्कस किया था। Okay, tomorrow we shall continue with the rest of the portion of the history. ये थोड़ा सा रिकैप वाला था, है ना, ये थोड़ा सा रिकैप था। मेरे पीछे भी अशोक है ना, सम्राट अशोक है मेरे पीछे, है ना, तो आप लोग देख सकते हो। और ये जो पिक्चर है ये हेमंत त्रिपुरे सर ने ये फर्स्ट टाइम भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया। इन मीन्स ही स्टार्टेड डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ पोस्टर्स। तो अभी ये पोस्टर्स आपको कई जगहों पे मिलेंगे। सो क्रेडिट गोज टू द हेमंत त्रिपुरे सर दैट ही प्रमोटेड दिस अशोका बिकॉज वी बोथ आर वेरी फैन, ग्रेट फैन ऑफ अशोका। बिकॉज हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं और जब आप वो पूरे ईमानदारी के साथ हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप शाहरुख खान के जैसे मॉडर्न टाइम्स में नहीं कि सब लोग हीरो के लोगों के फैन बनते हैं, तो ये हमारे रियल हीरोज हैं, ओके, जो एग्जिस्टेंस में थे, जो अस्तित्व में थे और जिन्होंने रियलिटी में ये जो भारतवर्ष हम जिसे कहते हैं, तो भारतवर्ष
का की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो केवल अशोक के टाइम पे है, ये बात ध्यान में रखो। उसके ना पहले भारत था ना उसके बाद था, क्योंकि फिर वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी हुई, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गन्स हुए, और जब डिसइंटीग्रेशन की बात आती है तो जहां पे सैकड़ों राजा होते हैं तो वहां पे एक यूनिफाइड कल्चर और एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड कल्चर in the ancient history was possible only during the period of Ashoka. ओके, तो भारत की कंसेप्ट, मतलब भारत के इवोल्यूशन को भी अगर आपको समझना है, जिसके ऊपर वो नाम के ऊपर जो आज की डेट में थोड़ी सी बातचीत चलती थी, तो उसको भी समझना है, तो आपको अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन और अशोक का जो पेरीफेरी है, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल पेरीफेरी, वो आपको समझना होगा। ओके, सो आई कंक्लूड दिस टुडे सेशन ओवर हियर। Anybody who is having any question, you can ask me. After that, we can conclude, and we shall continue for the rest of the rest of the topics from tomorrow. Yeah, प्रश्न आहे का कोणाला काही? सायली, विशाखा, नमिता, सुबोध, स्मृती, श्रावणी, साक्षी, ऋषिका, बरं आहे तुम्हाला प्रश्न नाही आहे, प्रश्न पडू नयेत, बरोबर आहे ना? प्रश्न पडणं चांगलं नसतं, बरोबर आहे की नाही? प्रश्न पडू नयेत. तुझा आवाज नाही येत आहे, मला ब्रेक होतोय ब्रेक. हॅलो. हा बोल. आज सर जसे आपले बुद्धिस्ट काउन्सिल झाले होते बघा 4, तसे जैन काउन्सिल पण झाले होते का? मी वाचलं होतं, म्हणजे काय आयडिया आहे का तुम्हाला जैन काउन्सिल बद्दल? आहे ना, आहे ना, आयडिया आहे ना, मला आयडिया आहे मला. एन्शियंट हिस्ट्रीमध्ये 2 जैन काउन्सिल्स आहेत, ठीक आहे. एक वल्लभीला झालेली होती आणि एक जी आहे ती नॉर्थ मध्ये झाली होती, ठीक आहे, पाटलीपुत्रा. आणि त्याच्याच नंतर ते 2 फॅक्शन्स त्याच्यामध्ये पडले होते. एक होतं जय श्वेतांबर आणि दुसरं होतं दिगंबर फॅक्शन. आपण नंतरच्या याच्यामध्ये या जैनिझमच्या कॉन्सेल्स, लिटरेचर याच्याबद्दल डिस्कस करणार आहोत. आता तर मी तुम्हाला, कारण या नंतरच्या गोष्टी आहेत, ठीक आहे. बुद्धिझम ऑल टुगेदर थोडा एक इंटिग्रेटेड टॉपिक आहे, जैनिझम थोडासा डिसइंटिग्रेटेड टॉपिक आहे, त्याच्यामुळे त्या मी सांगितल्या नाही. सो त्या 2 महत्वाच्या कॉन्सेल झाल्या होत्या. ओके, या आणखी चलो. इस्माइल, कोई प्रश्न है? इस्माइल, कोई प्रश्न है क्या? नहीं सर. नहीं, तुम्हारे दिमाग में प्रश्न नहीं होता है, हाँ? क्योंकि दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, उसके लिए प्रश्न नहीं होता है. हम्म? हाँ? काय वैष्णवी 1, वैष्णवी 2, श्रावणी, स्मृती, नाही आहे प्रश्न? चला, ठीक आहे, मग मी थांबतो आता इथे. बेटा लागेल ना बाळा, लागेल बेटा. चला, मी थांबतो इथे. चलो, बाय.